नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। यूपी इन्वेस्टर समिट से सीधी तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। मुकेश मानी वहां पर संबोधित कर रहे हैं। New innovative initiatives, Geo School and Geo AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. Second, Reliance Retail will revolutionize hundreds of thousands of kiranas and small stores across UP, enabling them to grow more and earn more. More importantly, we will increase manifold our sourcing of a wide range of agriculture and non-agro products from the state. It will benefit our hard-working kisans, local artisans, craftsmen, MSMEs, as well as the supply chain ecosystem in UP. Third, in new energy, we will set up 10 gigawatts of renewable energy capacity, the largest in UP. We will also start an ambitious new bioenergy business. Reliance के bioenergy उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। Fourth, our philanthropic arm, Reliance Foundation, is contributing to the success of Pradhan Mantri Ji's Namami Gange mission. It will continue to engage with partners and government in its mission to transform lives and livelihoods in the state. In a nutshell, Reliance will continue to work for UP, Ji Jaan se, and we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi Ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that date till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. Our businesses have not only been growth multipliers as they enable several sectors of the economy to grow, but also employment multipliers. Our investments have generated over 80,000 direct and indirect jobs in the state. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. Uttar Pradesh का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश दिस समिट एंड द स्टेट ऑल द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उत्तर प्रदेश की उन्नति और प्रगति में और अपना सहयोग देने का। और अब देवीय सज्जनों, आमंत्रित करते हैं हमारे अगले आइकॉनिक बिजनेस लीडर को, जिन्हें लोग पॉपुलरली मैराथन मैन के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सुशोभित किया गया था और जो देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने बिजनेस हाउस को लीड कर रहे हैं, चेयरमैन टाटा सन्स श्री एन चंद्रशेखरन जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Governor Anandiben ji, respected Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath ji, और चलिए भोपाल से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। जनजाति गर्जना डी लिस्टिंग महारैली का आयोजन आज किया गया है। जनजाति सुरक्षा मंच ने इस महारैली का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग भी BHEL दशहरा मैदान पहुंचे हैं।
दोपहर 12 बजे से गर्जना महारैली का आरंभ होगा। के लोग BHEL दशहरा मैदान में जुटे हैं और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए हैं और जनजातीय गर्जना डीलिस्टिंग महारैली आयोजित हो रही है, जिसमें प्रदेश भर से 40,000 से ज्यादा जनजातीय समुदाय के लोग यहां पर पहुंचे और इस वक्त हमारे साथ मध्य क्षेत्र के संयोजक हैं, उन्हीं से बात करेंगे। डीलिस्टिंग गर्जना महारैली हो रही है, इसमें जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से क्या कुछ आपकी मांगे हैं और गर्जना रैली ये है तो इसमें क्या कुछ मांगे और उठाई जाएंगी? हमारी जनजातीय सुरक्षा मंच की एक ही मांग है कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनको जनजाति की सूची से हटाना है। ये हमारी एक सूत्री मांग है। ये इसलिए पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन कर रखा है और ये मांग संसद में पूरी होगी। जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं वो उन्होंने बिल्कुल हिंदू पद्धति की रीति पूजा जो भी है सारी छोड़ दी और जो उनका धर्म है सिर्फ वो धर्मांतरित धर्म का ही सारे उनकी एक्टिविटीज हो गई है। जब सारी चीजें हो गई है तो उनको डिलिस्टिंग करना जरूरी है। तो पहचान कैसे करेंगे, वही मैं पूछ रही हूँ। जो जनजातीय समाज की अपनी रूढ़ी परंपराएं हैं और वो रूढ़ी परंपराओं को कन्वर्ट होने पर बदल दिया जाता है क्योंकि वो उनकी अपनी आस्थाएं और परंपराएं होती है। ये हम लोगों की मांग अभी संसद में और महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय से निवेदन है और कि वो संसद में इस विधेयक को लेकर के आए। जिस प्रकार से 341 में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान है उसी प्रकार का जनजातीय समाज के लिए 342 अनुच्छेद 342 में करने की हमारी एक मांग है। तो डीलिस्टिंग की मांग है और आप देखेंगे कि कड़ी धूप में जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो पहुंच गए हैं और मांग यही है कि जो आदिवासी समुदाय से नहीं है लेकिन आदिवासी समुदाय का होने का बताकर सारी चीजों का लाभ लेकर नौकरी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम जो आदिवासी समाज की पूजा परंपरा पद्धतियां हैं उनको छोड़ देते हैं। इन्हीं लोगों को ध्यान में लाकर डीलिस्टिंग कराना है और इसी की इनकी मांग है ताकि ऐसे लोगों को डीलिस्टिंग कर इनके समुदाय से हटाया जा सके। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रंजना का हम रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, महज डीलिस्टिंग की मांग है, उससे लेकर महारैली का आयोजन, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल दशहरा मैदान की? जियाबंदी का डीलिस्टिंग की मांग है और BHEL का दशहरा मैदान है जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं कि यहां पर बड़ी संख्या में जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो भी यहां पर हो रहे हैं। और एक तस्वीर ये भी है जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी भारी तादाद है जनजातीय समुदाय के लोगों की जो कि BHEL दशहरा मैदान में पहुंच गए हैं और गर्जना महारैली यहां पर हो रही है जिसमें प्रदेश भर के 40,000 से ज्यादा जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि इनकी यही मांग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आदिवासी कोटे में आकर नौकरी से लेकर तमाम जो चीजें हैं उनका फायदा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लाभ मिल जाता है उसके बाद वो आदिवासी समुदाय की परंपराएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं, उनको छोड़ देते हैं। धर्म परिवर्तन जैसी चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है और इसी के चलते डीलिस्टिंग की मांग यहाँ पर की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने आदिवासी कोटे से तमाम जो आरक्षण है, जो नौकरी है उसका फायदा तो लिया है, लेकिन बाद में पूजा पद्धति, परंपराएं और प्रकृति प्रेम यानी आदिवासी जिस तरीके से रूढ़ी चीजों से जुड़े रहते हैं उनको छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों को लिस्टिंग की जाएगी और इसी बात को लेकर ये मांग की जाएगी कि PM और राष्ट्रपति विधेयक लेकर आए और ऐसे लोगों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। अवंतिका, मध्य प्रदेश में साल 2023 में अब कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है और इस बार सबका फोकस जनजातीय समुदाय पर है, आदिवासी वोटर्स पर है और इसीलिए अब एक नई तरह की जो बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है, डीलिस्टिंग करने की मांग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब ऐसे आदिवासियों को, जनजातीय समुदाय को चिन्हित किया जाएगा, लोगों को जो कि अब
दूसरे धर्म को अपना चुके हैं फायदा लेने के बाद। इसीलिए अब इसकी मांग जोर पकड़ रही है और ये गर्जना महारैली आज 1 दिवसीय है, लेकिन आगे लगता है कि ये आंदोलन और ज्यादा जोर पकड़ेगा। बिल्कुल, और चूंकि देश भर में इस तरह का आंदोलन है, इसलिए संसद की तरफ से किस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका फिलहाल रंजना इस पूरी तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो गर्जना महारैली जिससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महारैली का आयोजन 12 बजे का समय है जब महारैली यहां से जिसका आगाज होगा। फिलहाल BHEL दशहरा मैदान की तस्वीरें जहां पर जनजातीय समाज की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए। और अब जबलपुर से बड़ी खबर है, शहर के सभी पेट्रोल पंप की जांच होगी। कलेक्टर ने 4 सदस्यीय टीम बनाई है। पेट्रोलियम कंपनियों के साथ मिलकर ये टीम बनाई गई है। टीम किसी भी पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच सकती है। हाईकोर्ट जज ने कल पेट्रोल की चोरी एक पेट्रोल पंप पर पकड़ी थी। 50 लीटर के टैंक में 57 लीटर का पेट्रोल डाला जा रहा था और इसी के बाद से अब देखिए प्रशासन भी एक्शन मोड में। अब किसी भी पेट्रोल पंप पर कलेक्टर के द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय टीम पहुंच सकती है। यहां पर पेट्रोल पंप की जांच कर सकती है, निरीक्षण कर सकती है कि किस प्रक्रिया के तहत यहां पर काम हो रहा है और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित ही कार्रवाई भी मौके पर ही हो सकती है। तो कल ये पूरा मामला सामने आया था जहां पर हाईकोर्ट जज ने पेट्रोल पंप पर इस तरह की चोरी पकड़ी थी। 50 लीटर के टैंक में 57 लीटर का पेट्रोल डालने की बात कही गई। तो इसी को देखते हुए कलेक्टर ने 4 सदस्यीय टीम बनाई है जो कि पेट्रोलियम कंपनियों के साथ मिलकर ही गठित की गई है। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, कल ये मामला सामने आया था और बेहद ही गंभीर मामला है जिसको लेकर फौरन एक्शन मोड में प्रशासन भी दिखता है। किस तरह से होगी अब आगे की प्रक्रिया? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, कल ही एक बड़ा मामला सामने आया था जहां एक जज की गाड़ी में तय सीमा से अधिक पेट्रोल डाल दिया गया था, जिसके बाद उस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। मोखा फ्यूल्स, सिटी फ्यूल्स नाम था उस पंप का। इसके बाद प्रशासन नींद से जागा है और अमूमन हम कहते हैं हाथ से सबब बनते हैं। इस लिहाज से इस घटनाक्रम के बाद तमाम जितने पेट्रोल पंप जबलपुर शहर में तकरीबन 50 इनकी संख्या है, उन सभी पेट्रोल पंप्स की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है जिले के कलेक्टर ने कर दिया है। और जो कमेटी वो तमाम पेट्रोल पंप्स में जांच करेगी और मशीन्स का सत्यापन भी करेगी क्या पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है, जो कि लंबे समय से ऐसे पेट्रोल पंप की जांच की नहीं गई थी। और जो जिम्मेदार विभाग है वो अमूमन उसके जिम्मेदार अधिकारी ऑफिस में ही, दफ्तरों में ही कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। ये बात भी सामने आई थी। लंबे समय से पेट्रोल पंप्स की जांच भी नहीं हो पाई। इस लिहाज से फिलहाल प्रशासन ने सख्ती अपनाई और सभी पेट्रोल पंपों की जो जांच है वो फिलहाल यहाँ पर कराई जाएगी और देखा जाएगा कि क्या तय मात्रा के मुताबिक ही पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है कि नहीं, उनकी क्वालिटी कैसी है, कोई मिलावट की जा रही है कि नहीं। तो 4 सदस्यीय समिति जो कमेटी गठित की गई है वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट इन तमाम पेट्रोल पंप्स को लेकर के बनाएगी। बिल्कुल, चलिए देखना होगा कि निष्कर्ष इसका आगे क्या होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। तो कलेक्टर की तरफ से जो जांच टीम गठित की गई इसमें 4 सदस्य शामिल हैं और आगे जाकर वही पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। और चलिए अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिले का। ग्वालियर में नर्स भर्ती परीक्षा पर्चा लीक मामला, हिरासत में कोचिंग संचालक, 15 लाख रुपए में गैंग से की थी डील, पर्चा लीक होने की भी पुष्टि। भोपाल में ट्रांसफार्मर मामले को लेकर बोले ऊर्जा मंत्री, जिन लोगों के बिल जमा हैं उनके नहीं काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। हमारी सरकार लोगों को जो सुविधाएं दे रही है वो आगे भी जारी रहेगी। भोपाल के आजाद नगर में 1 हफ्ते बाद भी नहीं लगी डीपी, बिजली बिल ना भरने से बिजली विभाग ने हटाई थी डीपी। बच्चों की पढ़ाई के साथ पानी की किल्लत से लोग परेशान। ग्वालियर में लोक अदालत में मिलने वाली छूट का बढ़ा दायरा, अब 50,000 रुपए तक के बिजली बिल पर मिलेगी छूट। 11 फरवरी को आयोजित होगा नेशनल लोक अदालत, उपभोक्ताओं को मिलेगा 30% छूट का लाभ। बालाघाट में कुएं में गिरा दुर्लभ प्रजाति का काला हिरण, खेत में बने कुएं से वन विभाग ने किया रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया। इंदौर में शादी समारोह में मोबाइल चोरी कर रहे शख्स की पिटाई, चोर ने कबूली 2 मोबाइल की चोरी, पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। रतलाम में जन्मदिन के जश्न के दौरान 2 गुटों में चाकूबाजी, हमले में 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जबलपुर में रिटायर्ड फौजी के साथ 36 लाख की धोखाधड़ी, फर्जी फौजी बनकर ठग ने गुजरात में रियल एस्टेट और ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में कराया था निवेश, हर मंगलवार को रिटर्न का था दावा। भानुप्रतापपुर में ट्रक और ऑटो की टक्कर, 7 छात्रों की मौत, गांव में पसरा मातम, 2 घायल बच्चों का इलाज जारी।
कांकेर हादसे से नहीं लिया कोई सबक। रायपुर में बच्चों को ऑटो में ठूस ठूस कर ले जा रहे स्कूल अभिभावक और स्कूल प्रबंधन की दिखी लापरवाही। आज अंबिकापुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल मैनपाट का करेंगे दौरा। राजधानी रायपुर में सामूहिक आदर्श विवाह में होंगे शामिल। रायपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर महाअभियान। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे शुभारंभ। 88 लाख बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी। आज सीएम हाउस का करेंगे घेराव। पूरा तालाब धरना स्थल से पंडाल हटाने से है नाराज। बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद। चौक चौराहों से हटाया जा रहा अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की रमेश सिन्हा की नियुक्ति की सिफारिश। दुर्ग में 1.5 लाख की आबादी को आज नहीं मिलेगा पानी। शंकरनगर पानी टंकी में हो रहा इंटरकनेक्शन का काम। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से होगी पानी की सप्लाई। बिलासपुर में सूदखोरों से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी। फांसी लगाने से पहले बनाया वीडियो। कोरोना में बुक डिपो बंद होने पर लिया था कर्ज। धमतरी जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान। 25 में से 19 जनपद सदस्यों ने लिया है प्रस्ताव। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। सूरजपुर में ट्रांसफार्मर से कॉपर तार चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 8 आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर प्रेमनगर से 4 ट्रांसफार्मर से की थी चोरी। कोरबा में दुष्कर्म का आरोपी गुजरात से गिरफ्तार। गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 महीने से था फरार। हड़ती बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायगढ़ में जंगल गई महिला की करंट लगने से मौत। सुअर के शिकार के लिए लगाया गया था करंट। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। जांजगीर चांपा में दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी पति, सास और ससुर गिरफ्तार। नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। अकलतरा पुलिस की कार्रवाई। और इस बीच बालाघाट से बड़ी खबर है। अमेठा में पति ने पत्नी की हत्या की है। चाकू से गला रेतकर पत्नी की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षक के पद पर तैनात है। ये बड़ी घटना बालाघाट की। इस बारे में जानकारी सामने आई है कि चाकू से गला रेतकर पत्नी की हत्या की है पति ने। तो प्राथमिक तौर पर वजह अभी तक साफ नहीं। क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वजह इसके पीछे, इसका पता लगाने के लिए पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। आरोपी शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षक के पद पर तैनात है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अमेठा का यह पूरा मामला जहां पर पति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या की है। सही कि श्रीनिवास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, क्या वजह का अभी तक पता चल पाया, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? अवंतिका, वजह तो अभी तक नहीं मालूम चल पाया, क्योंकि जो मृतका शिक्षिका है और पति दोनों अलग अलग रहते थे। और कल देर शाम की बात है जहाँ पे मृतका का जो पति है दुर्गा प्रसाद, वो आया, उससे आपस में विवाद करने लगा। तो एक उनके साथ एक बच्ची रहती थी, उनकी लड़की, तो बाहर निकल गई। इसी बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया और दुर्गा प्रसाद ने अपनी बीवी सरला पटले को चाकुओं से गला रेत के हत्या कर दी। आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है बहेला थाना क्षेत्र के अमेरा की घटना है। और प्राथमिक शाला अमेरा में ही मृतका जो है सरला, वो वहां पे शिक्षिका के पद पे पदस्थ थी और सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी। इसी बीच ये जो घटना है, ये घटना घटित हुई और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद पति भी रूम दरवाजे को बंद कर लिया और अंदर ही दोनों थे जी। और जैसे उनको निकालने की कोशिश किया जा रहा गांव वालों के द्वारा, तो उसको भी धमकाया जा रहा था कि तुम आओगे तुम्हें मार देंगे। और एक चाकू से इनने गला रेत की हत्या की। और इस पूरे मामले में जो सामने जो बात आ रही है कि इतना विभत्स तरीके से हत्या किया है। पहले तो उसने गला रेता, उसके बाद चाकू से पेट पे, गले में, अलग अलग जगहों पे 5-6 वार किया उसने। तो कुल मिला ये घटनाएं जो है बहुत ही दर्दनाक मौत अपनी पत्नी को उसने दिया। जी चलिए, यानी कि पूरा विवाद क्या कुछ रहा, इस बारे में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बार फिर रुक करेंगे 85 खबर 85 से लेकर। बलरामपुर में ऑपरेशन ईगल के तहत